question is to Mr. Narayan. I wanted to find out if WCD has received the Nirbhaya fund yet. Which are the various agencies that are supposed to be providing this fund? Will it be a recurring fund or is it a one-time payment? And if it is a one-time payment, how will you run the various schemes which are going to be funded by the scheme? I think this is the question for the finance ministry, but I can understand whatever I can understand. That is 1,000 crore is a one-time fund, but we can use the interest of that fund in the welfare of women and children. Ma'am, which are the agencies which will be paying it? That will decide later on. Otherwise, I'm trying to getting this fund with my ministry for this National Integrated Women Resource Center. I have some papers with me, so I'll discuss with the finance ministry. Is there a time frame under which the fund should be released to you? Is there a time frame under which the fund should be released to you? Let me talk to the finance minister. Then after that we can discuss within very fast. Ma'am, last question here. I'm Arshad. I'm from Kashmir. See, there were a lot of suggestions from panelists here or from the audience that from here, certain area in Bengal or Kerala, there is this trafficking. Can't you have any mechanism in your department to get these kind of suggestions or feedback so that you can act upon them and you can just go to the state government and see what's the action, or you can have a kind of a feedback on your website. I don't think your website is perfectly working when it comes to a complaint of any kind of harassment or sexual abuse there. So can we have some kind of a mechanism monitoring in your ministry through website so that there is a grievances are being addressed? कुछ ऐसा है कि आप इस पे ना seriously work करें ताकि जो भी ये इसमें एक्चुअली ये कमीशंस का वर्क है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या बच्चों के लिए हमारा NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. These two commissions are working tirelessly for such complaints, and you can go to their sites and you will find all the information. So far as normal complaints are concerned, we have a system inbuilt in our website also, and we are entertaining those complaints. We are replying through our website and directly to them also, but that is in general on any subject. But these type of cases, especially, they are sent to the commissions, even if they are received in the ministry. But more of these complaints are directly being received by the commissions themselves, and they are handling. और दूसरा, ये कंप्लेंट्स आए ही नहीं, इस चीज़ को रोकने के लिए जो अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं थ्रू NMEW, नेशनल मिशन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और थ्रू अहिंसा मैसेंजर्स. वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अहिंसा मैसेंजर एट द पंचायत ग्राउंड लेवल, पंचायत राज लेवल. पंचायती इलेक्टेड वुमेन्स आर आर अहिंसा मैसेंजर and village coordinators are our Ahimsa messenger. Plus these sablas, I think more than 1 crore sablas are there. Those who are helping with this all Ahimsa messengers. ये जो sablas हैं, ये भी Ahimsa messenger के साथ मिल के ग्रास रूट लेवल तक, विलेज लेवल तक जाके हमारे जो स्कीम्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस देती हैं. वो भी एक हिस्सा है कि वायलेंस के अगेंस्ट, अगर कहीं डोमेस्टिक वायलेंस है या कहीं डाउरी की बात आ रही है या कहीं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कुछ भी किसी तरह के वायलेंस चाइल्ड के अगेंस्ट है, तो वो जो हमारे अहिंसा मैसेंजर जगह जगह पे क्रिएट किया, भी कुछ जगहों में है, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरे देश में, क्योंकि 1 करोड़ जो हमने सबला तैयार किए ना, वो इसीलिए तैयार किए. हमारे NMEW से विलेज कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी हमने इसी काम के लिए लगाया है कि इनके साथ मिल के वो काम करें. और मैंने कहा कि जो निर्भय फंड की बात आ रही है या दूसरे हमारे पास हैं या NMEW, हर जगह पे एक हम केंद्र खोलना चाह रहे हैं जहां हर तरह की प्रॉब्लम को, कलेक्टर ऑफिस में वो एक ऑफिस खोलेंगे जहां प्रोटेक्शन ऑफिसर भी बैठेगा, जहां हमारे विलेज कोऑर्डिनेटर भी आएंगे, जहां हमारे अहिंसा मैसेंजर्स भी वहां बैठेंगे. और किसी भी तरह की महिला को प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की बात आएगी, उसको लगता है कि मैं एक जो फार्मर हूं, किसान महिला को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी कैसे दूर होगी. कोई ओल्ड एज वुमेन आती है कि मुझे पेंशन चाहिए तो उसको कैसे मिलेगा, उसको किन बारे में, उनकी जो हमारी स्कीम्स उसके बारे में बताने के लिए हमारे एक ऐसा सेंटर्स
कुछ खुले हैं स्टेट में, अगर कहो तो मैं रत्ना प्रभा उनके एडिशनल सेक्रेटरी बता देंगे, और जगहों पे हम खोलने के लिए तैयार हैं और इस फंड को हम यूटिलाइज करने के लिए तैयारी हमने पहले से की है। मैम, परसों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है मुंबई ब्लास्ट के मामले में। उसमें एक जुवेनाइल क्रिमिनल था जिसने ये कहा था कि मुझे छोड़ दिया जाए क्योंकि मैं जुवेनाइल हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेररिज्म के मामले में ऐसा नहीं होगा। तो रेप के मामले में जुवेनाइल को क्यों छोड़ा जाता है? क्या एक कंट्राडिक्शन नहीं है आपके लॉ में? देखिए, जुवेनाइल को छोड़ा नहीं जाता। अगर मैंने एक जो केस पीछे दिसंबर में हुआ, उस समय मैंने सभी जुवेनाइल के लिए अलग से उसकी सुनवाई, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारे पास है। अगर इस तरह का बार बार अगर कोई जुवेनाइल काम करता है जो हीनियस क्राइम है, तो उसके लिए वहां रिमांड होम है, उसकी काउंसलिंग है। उसको हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चा अगर गलती से एक बार कर दे तो उसको समझाने के लिए, उसकी काउंसलिंग करने के लिए हमारे पास रास्ता हम देते हैं कि वो बड़ा होके अपने आप को, जो गलती उसने की है वो बड़ा होके अच्छा नागरिक बन जाए। अगर उसका बार बार कोई इस तरह के या कोई उसको यूज कर रहा है उस जुवेनाइल को, तो हम उसकी जड़ में वो उसको जब हम लाते हैं होम में, तो ये सारी इंक्वायरी उससे करते हैं कौन है, किसके लिए आप काम कर रहे हैं। अगर जो काम करा रहा है वो तो बड़ा होगा, उसको तो फिर सजा जो हमारा मेन एक्ट लॉ है उससे मिलेगा। जो जुवेनाइल जस्टिस होम में जब वो आता है तो उसकी पूरी की पूरी उसकी काउंसलिंग करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको वहां रखते हैं। अगर उसे कहें कि हमने उसके छोटा ऑफेंस किया, उसको सजा भी मिलती है, तो उसी होम में 3 साल तक का प्रोविजन है उसे सजा देने का।